Good morning to all of you, class 8 students. Today we will discuss about compound interest and some special cases of compound interest. Okay, and our running chapter is comparing quantity, and I request you to please visit and please watch very carefully. Then you will solve this question. I would like to express by an example of question, and so please listen carefully and watch carefully to all of you. Okay, here is given compound interest is our topic, and the case is a special case of compound interest is interest compounded half yearly. Okay, when the interest compounded half yearly, let us that principal is P, rate is R% per annum, time is n years. It is these are given annually. Okay, suppose that the interest is compounded half yearly, then rate will be R by 2%. Okay, we divide rate by 2 per half per year. Okay, per half year, and now time will be multiplied by 2. It will be 2.5 years. Okay, remember that whenever we have to find the interest compounded half yearly in the question, if it is given that we have to find interest compounded half yearly, then we have to divide by 2 to the rate and multiply by 2 to the time. Okay, then we will solve further by the formula of amount. Okay, and then compound interest. Here is a question. For example, it is given that find the compound interest on rupees 15,625 for 1.5 years at 8% per annum when compounded half yearly. This is question is given that when compounded half yearly, and so here is the solution. Principal is given 15,625, rate is given 8% per annum, and so according to this rule that the question is given by compounded half yearly, and so we will divide by 2 the given rate is given 8%, so we will divide by 2, then it will come 4% per half year. Okay, and now time is also here given. Time is given 1.5 years, and by solving this in proper fraction, then 3 by 2 years, 2 1 ja 2 plus 1, 3 by 2 years, and we have to multiply by 2. Here is a formula is given 2n, n is given 3 by 2 here, and here is 3 by 2, and by multiplying 2n, 2 into 3 by 2, 2 will be cancelled, and 3 half years. Okay, 1.5 years, there is a 3 half years. Okay, and now by using the formula amount, this amount is P into 1 plus R by 100 to the power n. We will solve here. It is given amount equal to, that is given principal 15,625 into 1 plus R by 100 to the power 3. Okay, 3 is n and R is the rate, and we will solve here 15,625 into this one, 100 1 100 plus 4, that is 104 by 100 to the power 3. 104 by 100 is given here 3 times, and so we will use there 104 by 100, 104 by 100, 104 by 100 3 times, and here is 15,625. and here we watch carefully that this is reduces by very carefully, and so you will solve here by very peculiarly, and this is the given amount is 26 into 26 into 26. These are the left. Okay, and so we will solve amount equal to 26 into 26 into 26. It will get you will get 17,576 after multiplying 26 3 times. Okay, and this is the amount. This is the rupees in rupees is 17,576 rupees as a amount, and now we have to use for compound interest equal to amount minus principal. Amount is given and principal is already given 15,625. After subtracting this, we will get 1,951 is our answer. Compound interest is given. Now once again एक बार फिर मैं बता दूं आप सबको, अभी हम लोग चैप्टर जो देख रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर हमारा है, और इसमें हम लोग देखेंगे कुछ खास केस इसके 2 केस हैं. जब कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा हाफ ईयरली होगा तब वैसे केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे,
किसी क्वेश्चन को, और जब क्वार्टरली होगा तो आज हम लोग हाफ ईयरली को देख रहे हैं और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अब एग्जाम्पल के साथ मैं बता रहा हूँ। बहुत अच्छी तरह देखिएगा क्योंकि फर्दर आगे क्लास में भी काम आएगा आपको। तो ये देखिए कंपाउंडेड हाफ ईयरली केस है हमारा, उसमें कैसे हम बनाते हैं। तो देखिए दिया हुआ है इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इंटरेस्ट जो है हाफ ईयरली का मतलब साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलता है किसी को। तो मान लीजिए जैसे ये दिया क्वेश्चन में कि प्रिंसिपल हमारा पी है, रेट हमारा R% है पर एनम, मतलब सालाना, एनुअली है ये, वार्षिक, और ये टाइम हमारा n ईयर्स है, सालाना, 1 साल में। लेकिन इसी को यदि कंपाउंडेड हाफ ईयरली जब किया जाएगा तो R में हम क्या करें, 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा R/2% हो जाएगा ये, और पर हाफ ईयर हो जाएगा क्योंकि 2 बार, क्योंकि ऐसे भी आप रेट लेंगे तो साल में 2 बार रेट मिलेगा आपको, इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग हाफ ईयरली इसलिए। और ये टाइम हमारा क्या है, ये हमारा 2 टाइम जो हमारा दिया हुआ उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार मिलेगा इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसलिए अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये फिर जब ये निकाल लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, इसके बाद हम लोग इसे फिर फार्मूला पर अमाउंट का फार्मूला यूज़ करेंगे, है ना, अमाउंट इक्वल टू P × 1 + R/100⁴ यूज़ करेंगे। और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यूज़ करेंगे हम लोग। तो अब देखें यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जब भी हमें ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली जब क्वेश्चन में दिया होगा तो वैसे केसेस में रेट को 2 से डिवाइड कर देंगे और टाइम जब भी जो भी दिया होगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके बाद फिर हम लोग फार्मूला जो अमाउंट का फार्मूला और कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला यूज़ करेंगे, तभी बनाएंगे हम लोग और अच्छी तरह से बना पाएंगे। तो देखिए ये सॉल्यूशन, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो गया हमारा। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹15,000। ये दिया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट को आप जानते हो चक्रवृद्धि ब्याज हिंदी में कहा जाता है, और ये हमारा मूलधन है 15,625 मूलधन हमारा प्रिंसिपल मनी है, और ये 1.5 ईयर, 1.5 साल कहते हैं इसको हिंदी में हम लोग। 1.5 साल में 6 महीना जो है हाफ ईयरली है ना, 6 महीने का 6 मंथ का हाफ ईयरली होता है, तो ये 3 बार आएगा एट 8% पर एनम व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली लिखा है, इसकी वजह देखिए हमने क्या किया, ये प्रिंसिपल तो जैसा वैसा रहेगा, रेट हमारा 8% पर एनम था, इसको 2 से जब डिवाइड कर दिया हम 8% को, तो देखिए 4% पर एन हाफ ईयरली आ गया, हाफ ईयर लिख दिए। फिर इस तरह से हमारा टाइम जो है, टाइम के लिए देखिए ये हमारा 1.5 ईयर दिया था, 1.5 साल को लिख कहते हैं हम लोग, 2 1 2 और ऊपर वाला जोड़ते हैं, 3/2 ईयर्स था, इसको हमने फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ दिया फार्मूला 2n, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया हमने। तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 कैंसिल, 3 आया, 3 हाफ ईयर, मतलब कि n की जगह पर हम लोग यूज करेंगे 3 को। और तब देखिए इसी तरह से यहाँ हमने बताया, इसको सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ बताया कैसे आया, और तब हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे, ये अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल × 1 + R/100 n हमारा हो जाएगा टाइम 3, और ये R हो जाएगा हमारा देखिए 4 हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, देखिए ये तो हमारा प्रिंसिपल तो जैसा है वैसे रहेगा, तो देखिए हमारा 15,625 हमारा 1 + ये 4% हो गया हमारा, ये रेट हो गया, और ये /100 × n जो पावर जो था हमारा, ये टाइम हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, देखिएगा 100 1 जा 100 +4, 4 को जोड़ेंगे 104/100 आएगा, तो दी पावर 3 है, मतलब 100/100 ये 3 बार आया, तो 3 बार हमने लिखा। इसको जब हम लोग काटे हैं, हम लोग याद रखिए इसको रिड्यूस सब करेंगे, बड़ी सावधानी रिड्यूस कीजिएगा। देखिए यहाँ कैसे कैसे काटे हैं, 25 से किए हैं, फिर यहाँ पे देखिए इसमें काटे हैं, पहले 3,125 से, फिर 625 से काटे हैं, फिर इसको काटे हैं, फिर 125 से, फिर 25 है, फिर काटे हैं 5 से, फिर 5 भी कट गया, और इधर भी काटते गए हम लोग, 25 जा 100 होता है, 25 जा 100 होता है, फिर ये देखिए काटे हम लोग 4 से काटे, यहाँ भी देखिए 52 2 जा, ये 52 2 जा, 52 2 जा, फिर काटते गए हम लोग, फिर 4 को काटे हैं, 2 2 जा 2 2 जा 2 2 जा, देखिए तो 26 कट गया, 26 2 जा, फिर 26 2 जा, 26 2 जा, कटा है इस तरह से हम लोग का। तो अंत में बचा हमारा 26 3 टाइम्स बचा, और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हमारा है, तो 26 × 26 × 26, 26 को 3 बार जब मल्टीप्लाई करें 26 को, तो हमारा रुपये में आएगा 17,576 रुपीज़, ये हमारा अमाउंट आया। ये कंपाउंड इंटरेस्ट जब निकालेंगे तो फार्मूला यूज़ करेंगे, फिर हम लोग अमाउंट माइनस प्रिंसिपल मनी, और अमाउंट हमारा ऑलरेडी अभी आया हमारा 17576 आया, और माइनस करेंगे अभी हम लोग जो प्रिंसिपल हमारा मनी है ये यूज़ करेंगे, ये वाला, फिर 15625, और घटाने के बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 1951 आएगा। इस तरह से 1951 आया हमारा आंसर कंपाउंड इंटरेस्ट। और इसको अच्छी तरह से आप वॉच कीजिएगा 1-2 बार, और मैं समझता हूँ 2 बार वॉच कीजिएगा, बड़ी अच्छी तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। और आगे भी हम लोग फिर आगे फर्दर फिर ये क्वार्टरली केस में आएंगे। दूसरा केस जो है इसका
कंपाउंड इंटरेस्ट इज क्वार्टरली, उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट डे आएंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट आप सबको, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर टू